Good evening, everyone. Good Shall we evening, start the sir. class? Yes, sir. Okay. So as you can see, my paint window is visible, and in the previous lecture yesterday, we understood about the concept, that is the definition of operating system, and what roles does or what functions does operating system performs. I think there were five functions, important functions, such as process management, memory management, file management, and security. And I think one more device management was there. So the five functions, five important aspects that operating system takes control of or manages the things about were these five things. And lastly, we understood what is a program and a process, the difference between the two, because we have to understand different types of processes. And so once again, we'll start with the same thing. So today we are going to deal with process and process management systems. इसमें कुछ important concepts आते हैं related to academics या end semester examinations जो आपके होते हैं, उसके perspective से कुछ important questions आ जाते हैं. So that will be dealing today. So we'll start with once again with the same topic that we left yesterday. What is the difference between program and process? So program can be any program that we have been doing in the other subject, like C, C++, Java. So these can be a programs, or rather any application that you are running, that can be considered also as a program. Uh, when a program gets under execution, उसको जब हम execution mode में डालते हैं, so that program requires certain resources. Now that resource can be a memory, कि हमें कुछ data store करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो that can be considered as a resource. Processor itself can be considered as a resource. Files can be considered as a resource. So there are different types of resources that a process may require during its execution. ठीक है, तो हम लोग एक प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं, रनिंग मोड में डाल देते हैं, एग्जीक्यूशन मोड में डाल देते हैं, तो वो सर्टेन रिसोर्सेज खोजते हैं, और इन रिसोर्सेज को जिन कंपोनेंट्स में यूटिलाइज किया जाता है, या दोज कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम दैट आर अंडर एग्जीक्यूशन एट द टाइम, दोज आर नोन एज द प्रोसेस. सो एक प्रोग्राम के सेवरल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं. ऑल्सो अ सिंगल प्रोग्राम कैन ऑल्सो हैव वन सिंगल प्रोसेस ऑल्सो. ओके, नाउ प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने कल जब डिस्कस किया था, तो वहां पे दो टर्म और मिला था हम लोग को, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, isn't it? Primitive and non-primitive scheduling. So we'll come back to that primitive and non-primitive scheduling at a bit later today. Uh, when we are dealing with a process goes through different stages. Okay, एक प्रोसेस जो है कई सारे स्टेजेस से होकर के गुजरता है, तब जाकर के उसका जो टास्क है वो कंप्लीट होता है. Also, a process is supposed to assign or is assigned certain resources either as per its requirement, कि जब उसको जरूरत है resources का तब मिल जाए, या फिर उस प्रोसेस को वेट करना पड़ता है कुछ समय के लिए, कि जब तक उसे रिसोर्सेज नहीं मिल जाता वो वेट करेगा. सो करेंटली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम में अगर कोई प्रिपेयर कंस्ट्रक्ट करता है, क्रिएट करता है, डेवलप कर रहा है, so there is an objective. What is that objective is? The primary objective is that कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके रिसोर्सेज जो हैं, या आपका प्रोसेसर जो है, कभी आइडल ना बैठे. आइडल मतलब बेकार ना बैठे. ठीक है, इन द सेंस आइडल मतलब वो बैठा, कोई काम नहीं है उसके पास. We always want that our processor should be active and running. Either a small process or a set of processes might be running every time. आप सिस्टम ऑन करके छोड़ देते हो, आप किसी भी टाइम कांस्टेंट पे उठा करके देखो, every time you'll see either a small process or set of processes or any big or small processes are running parallelly. कभी आपका सिस्टम आइडल नहीं बैठता है. अभी जैसे मैंने पेंट विंडो ओपन कर रखा, तो पेंट विंडो इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, सो व्हाटएवर ऑप्शन आई सेलेक्ट दैट विल गेट एक्टिवेटेड, और उसके बेसिस पे जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा. So whatever commands or instructions that the user is giving
and at the same moment that command has to be processed and the output must be reflected at the output window या output screen जो भी है आपका. So when we talk about a process, this topic always comes different states of a process. एक प्रोसेस अपने पूरी लाइफ टाइम में किन किन फेजेस से किन किन स्टेट्स से होकर के गुजरता है, ठीक है ना, किन किन स्टेट्स से होकर के गुजरता है. डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. कई लोग इसको 5 या 4 स्टेजेस में कंप्लीट कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट वी कैन राइट. फर्स्ट वन इज न्यू स्टेट. सेकंड stage is ready. Third is running. Terminated. ओके, ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे. इनका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन वेरी फ्रॉम डिफरेंट बुक्स टू बुक्स. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. I'll be very quick. Okay, let's try to build the relation between them.
Oh, okay, I'll make it a straight line. Okay, one more line must be there. Now this seems to be completed. अब इसमें एरो मार्क कर देते हैं जल्दी से. From the new state, process goes into a ready state. रेडी स्टेट से ये चला जाएगा सीधे रनिंग मोड में. From running mode, if it gets any interrupt, it may again go to ready state. While running, if it requires any input output event or any such wait is required for from the user's perspective, so it will go to waiting stage. Okay, and then from waiting it will again go to ready state, and from running, once the process is completed, it may get terminated. Now few more names are there that needs to be mentioned, like what happens in this stage. So it gets admitted. Then between ready and running, it shows an interrupt. An interrupt is there. Then between waiting and ready state, you have an event completion. This part. Then next we have, okay, here between ready and running, scheduler dispatch. That scheduler dispatch is between the ready and, okay, I'll let you know. Last two things are mentioned. Again, there can be an event wait. And finally, it may lead to exit. So this diagram is complete now. Okay, if you want, you may take the screenshot of this diagram. So this is a diagrammatic representation of process state. Different states से होकर के एक process गुजरता है, right from its creation up till its termination. तो let's say आपने एक प्रोसेस बनाया या सिस्टम ने एक प्रोसेस क्रिएट किया, और उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रेडी स्टेट में आएगा. एक प्रोसेस बना, वो रेडी स्टेट में आया, मतलब क्या हो गया? सी देयर आर टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट आर नोन एज शेड्यूलर. वहां पे एक टर्म है शेड्यूलर डिस्पैच.
So there is a one more component that is known as scheduler. Schedulers are of three types: long term, short term and middle term scheduler. ओके, आई थिंक हम लोग इसको शायद नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। शेड्यूलर का काम शेड्यूल करना, एज द नेम सजेस्ट, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग करना, प्रोसेसेस को कब क्या रिसोर्सेज चाहिए उसको शेड्यूल कर देना। ओके, सी प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन मोड में आता है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए है, ठीक है, उसको रिसोर्सेज चाहिए हैं। बस आपके लिए बात समझने के लिए इतनी है। whenever the processes gets the resources they start execution, वो अपना काम करना चालू कर देते हैं। अगेन जब उनको सारा काम हो जाता है, ओके, सो रिसोर्सेज लेकर के जब प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो वो रिसोर्सेज को रिलीज कर देते हैं और प्रोग्राम गेट्स टर्मिनेटेड, और सॉरी द प्रोसेस गेट्स टर्मिनेटेड। ओके, इन बिटवीन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, तो उसका यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल अभी दिखाई देगा। तो वंस अगेन आई विल स्टार्ट, वंस a program has been decomposed into several processes, each process is waiting for some resources, so they make a request कि I, each and every process makes a request कि I need these processes, these resources। हर एक process, once again I'll start to avoid any confusion, I'll be a bit slow। programs or a single program is decomposed into, let's say, n number of processes. Each process is supposed to be executed at certain specific duration of time. Also each process requires certain resources to get executed। अपना काम पूरा करने के लिए उन्हें कुछ कुछ चीजों की जरूरत है, वो चीज क्या है तो वो मेंशन कर देता है, आइदर मेमोरी हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, फाइल्स हो सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट रिसोर्सेज दैट अ प्रोसेस में रिक्वायर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। सो वंस द थिंग्स हैज बीन मेंशन्ड इट गेट्स रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रोग्राम क्या होता है, अभी अपने रेडी क्यू में आता है। रेडी क्यू क्या है, व्हाट इज द रेडी क्यू? सो रेडी क्यू इज जस्ट लाइक कि सबको शेड्यूल करके एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है, एवरी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को लाइन में खड़ा कर दिया गया एक क्यू में। सो विच एवर हैज गॉट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो लाइन में पहले खड़ा है, जब उसका टाइम आएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके पीछे वाला जो होगा वो वेट करेगा, अब उसका जब नंबर आएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लाइन बाय लाइन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब लगा करके क्यू में ये लोग खड़े रहते हैं, जिनका जब डिमांड या रिक्वेस्ट आता है वो एग्जीक्यूट करके निकल जाते हैं। तो न्यू से रेडी क्यू में आ गए हैं। नाउ वंस इट गेट्स द रिसोर्सेज एंड इट गेट्स इट्स टाइम कि हाँ द प्रोसेसर इज अवेलेबल, नाउ यू मे एग्जीक्यूट, तो उसको रनिंग मोड में लाया जाता है। सो द प्रोसेस गेट्स द रिसोर्सेज एंड गोज इनटू द रनिंग मोड। रनिंग मोड में वो काम कर रहा है। अब यहाँ से दो तीन चीज हो सकती है, ठीक है, देयर आर टू टू थ्री थिंग्स पॉसिबल। बट द इजीएस्ट वे इज व्हाट, रनिंग मोड से वो अपना पूरा टास्क कंप्लीट करके बाहर निकल जाए, एग्जिट हो जाए और टर्मिनेट हो जाए। सीम्स क्वाइट सिंपल, है ना, कि उसको सारे रिसोर्सेज मिले थे, उसने अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, एंड वंस जब उसका काम पूरा कंप्लीट हो गया और कोई काम उसके पास नहीं बचा है तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर जाता है या एग्जिट मोड में चला जाता है। फाइन, दिस कुड बी द सिंपलेस्ट वन। फ्यू मोर थिंग्स दैट कुड हैपन इज, रनिंग मोड में था, देन इफ यू सी द टॉप वन लाइन, इंटरप्ट वन, रनिंग मोड में था, उसको इंटरप्ट मिला। इंटरप्ट क्या हो गया, लेट्स से कि कोई प्रोसेस रन कर रहा था, उसको आइदर यूजर ने प्रॉम्प्ट कर दिया कीबोर्ड से कुछ मार करके, या माउस हिला दिया, या टच स्क्रीन पे टच कर दिया, या कोई ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म हुआ हो जिसके चलते एक इंटरप्ट अकर हो जाए। व्हाट इज एन इंटरप्ट? लाइक क्लास में आप पढ़ा रहे हो और कोई इंटरप्ट कर जाता है, आपका रिदम ब्रेक कर जाता है। सो यू वर स्टेटिंग, यू वर एक्सप्लेनिंग समथिंग, and in the meantime let's say someone from you unmute yourself and ask me a question, so that can be considered as an interrupt, कि smooth functioning जो था उसको किसी ना किसी तरीके से hamper किया गया। interrupt can be one more type in a sense कि process रन कर रहा था, रनिंग मोड में था, उसके पास सारे रिसोर्सेज थे, वो अपना एज पर द टाइम शेड्यूल एग्जीक्यूट होकर के टर्मिनेट हो जाता। बट इन द मीन टाइम एक ऐसा प्रोसेस आके रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज का, जिसका प्रायोरिटी, जिसका प्रिविलेज, जिसका इंपॉर्टेंस करेंटली रनिंग प्रोसेस से हायर है।
एग्जाम्पल मैंने कल लास्ट क्लास दिया था कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, उस टाइम में प्रिंसिपल या कोई हायर अथॉरिटी आ जाते हैं, तो वहाँ पे मिड वे में टीचर को क्लास रोकना पड़ता है जस्ट टू include the principal and higher authorities. And once their task is done, once they come out of the class, then again the class teacher or the subject teacher has to resume from the same point from where he or she has left. उसी तरह से एक प्रोसेस अपना कुछ काम कंप्लीट करना चाह रहा था, बट उसी बीच में उसके पास जितने भी रिसोर्सेज थे या उनमें से कुछ रिसोर्सेज थे, उसके लिए किसी और दूसरे हायर बड़े प्रोसेस ने रिक्वेस्ट कर दिया, तो इसको रिसोर्स छोड़ना पड़ेगा सीनियोरिटी का ख्याल रखते हुए या प्रायोरिटी उसका हायर है, then you are supposed to leave the resources. So the currently executing process releases the resources. Resources go back to या go to a new process and वो नया प्रोसेस अपना काम करना स्टार्ट करता है, रनिंग मोड में चला आता है. द अर्लियर जो पहले रन कर रहा था, जो अभी पार्शियली कंप्लीट हुआ था, उसको अपना रिसोर्स रिलीज करना पड़ा, उस पहले प्रोसेस को वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी स्टेट में ला करके छोड़ देता है. वाई इनटू द रेडी स्टेट? बिकॉज रेडी स्टेट से उसको दोबारा अंदर जाने का और रिसोर्सेस पाने का और एग्जीक्यूट होने का मौका मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. Yes, sir. नेक्स्ट थिंग इज रनिंग मोड में था, ठीक है, रनिंग मोड में था और उसको इवेंट वेट एक मिल गया. इवेंट वेट क्या है? लेट्स से उसके पास कुछ रिसोर्सेज तो थे, बट मिड वे इट रियलाइजेस कि मुझे कुछ और रिसोर्सेज भी चाहिए हैं, तो वो एक इवेंट के लिए वेट कर रहा है, या फिर एक सेमी प्रोसेस्ड प्रोसेस है या सेमी एग्जीक्यूटेड प्रोसेस है. इन ऑर्डर टू गेट इट कंप्लीटेड, इट इज वेटिंग फॉर अनदर सेट ऑफ प्रोसेसेस कि हाँ भाई तुम लोग अपना काम करके पूरा दोगे तब मैं अपना काम कंप्लीट कर पाऊंगा. सो लेट्स से कि प्रोसेस P1 माइट बी वेटिंग for some resources or for some output from another प्रोसेस P2 और P3 ऐसे करके. तो प्रोसेस P2 जब कंप्लीट होगा तब प्रोसेस P1 को वो डेटा देगा या रिसोर्स देगा. P1 तब जाकर के अपना काम कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट होगा. बट इन ऑर्डर टू डू सो, प्रोसेस P1 हैज टू बी वेटिंग फॉर प्रोसेस P2 और P3 जिससे उसको रिसोर्सेज या आउटपुट डेटा मिलने वाला है. सो वो क्या करता है अपने आप को, वो वेटिंग स्टेट में ले जाता है. ओके, द प्रोसेस P1 गोज इनटू अ वेटिंग स्टेट, और वेटिंग स्टेट में वो बैठा हुआ है कि उसको जो भी कंपोनेंट्स चाहिए थे या जो डेटा चाहिए था, वंस द प्रोसेस P1 गेट्स इट, इट विल अगेन गो बैक टू द रेडी क्यू, और रेडी क्यू से उसको जब टाइम मिलेगा, जब प्रोसेसर अवेलेबल होगा, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. सो अल्टीमेटली ईच एंड एवरी प्रोसेस मस्ट गेट टर्मिनेटेड. आज के टाइम में मोस्टली हमारे साथ यही होता है कि वेरी फ्यू ऑफ द प्रोसेसेस दैट डू नॉट गेट टर्मिनेटेड, वो कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं. आपको फोर्सफुली या मैनुअली उसको एंड करना पड़ता है या टर्मिनेट करना पड़ता है. So these are the few states or stages through which a process goes through in its entire life cycle. Either वो अपना काम complete करता है या इनकम्प्लीट होकर के पार्शियल मोड में रुक जाता है, either in waiting mode या फिर रेडी क्यू. वहां से फिर से जब उसको रिसोर्सेज या डेटा जो भी उसको कंपोनेंट्स चाहिए था वो जब मिल जाता है, तो अपना प्रोसेस स्टार्ट पूरा करके कंप्लीट करता है, और कंप्लीट करने के बाद टर्मिनेट या एग्जिट हो जाता है. इज द होल कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें? ऐसा इवेंट वेट क्या है सर, शेड्यूलर डिस्पैच क्या है, इवेंट कंप्लीशन? No, sir. No doubt नहीं है इसमें. Okay, so this is an important aspect from interview or from your examinations point of view कि what are the different states. तो ये diagrammatic representation के बाद आपके साथ आपको explain करना पड़ेगा. Just hold on. Okay. Now,
ये मिनिमम एक 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम 10 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्वेश्चन सेट कैसे होता है. Next, one more important thing is that every process uh, has got its own some components. उसके साथ कुछ components होते हैं जिनका नाम हमें पता होना चाहिए. Now next topic is, I'll change the color. ये visible नहीं है. Okay, PCB, process control block. So as you may know, each process within the operating system has to be represented by a process control block. So process control block क्या करता है, हर एक प्रोसेस को डिफाइन करता है into the operating system. Okay, कई बुक्स में आप देखोगे इसका नाम हम लोग को टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी मिलता है. So don't get confused, either PCB या TCB बोलेगा, it refers to the same thing. इसका भी एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं जल्दी, उसके बेसिस पे वो एक्सप्लेन कर देंगे. Okay. डोंट वरी अबाउट द साइज ऑफ ईच ब्लॉक. ओके, ये रैंडमली हम बस साइज ले रहे हैं. Okay, so start naming each one of them. First one is process state. Second one is process number. Third one is program counter. Next one is registers. After memory limits, we have list of open files and few more components might be there. Okay, so ये हमारे important role है. आप यहाँ तक भी लिख करके छोड़ सकते हो. There is nothing wrong with it. Okay, we'll quickly move forward.
सो प्रोसेस स्टेट, अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, it may be new, ready, running, waiting, terminated, any of the state it may contain. So process state या PCB में पहला कंपोनेंट क्या हमारा प्रोसेस स्टेट, इट डिफाइंस कि आपका करंट आपका प्रोसेस जो है करेंटली कौन से स्टेट में है। ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ताकि इसके बेसिस पे वो एक ऑर्डर या डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सके अबाउट ईच एंड एवरी प्रोसेस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हर प्रोसेस का इंफॉर्मेशन नहीं होगा या हाँ, हर प्रोसेस का इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो वो उनको रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर पाएगा या उनसे रिसोर्सेज ले नहीं पाएगा। नाउ इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज क्यों किए जा रहे हैं हम कि रिसोर्सेज मिलना चाहिए या रिलीज हो जाना चाहिए। सी लेट्स से कि देयर आर टू प्रोसेसेस P1 एंड P2, ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे। प्रोसेसेस P1 एंड P2 आर देयर। प्रोसेस P1 को दो रिसोर्स चाहिए हैं R1 एंड R2। प्रोसेस P2 को दो रिसोर्स चाहिए हैं R2 एंड R3। Okay, again I'm repeating, there are two processes P1 and P2. In order to complete its task, process P1 requires two resources R1 and R2. On the other hand, in order to complete its task, process P2 requires resources R2 and R3. So there are two processes P1 and P2. There are three resources P1, P2 and P3. If two processes are running parallelly, yes, there is a possibility that two processes can run parallelly simultaneously. So let's say P1 and P2 are running parallelly in two different scenarios. P1 is having a resource R1 right now, but in order to complete its task, it requires a resource R2. On the other hand, process P2 is working with resource R2, and in order to complete its task, it also requests for resource R3. So P1 को R1 मिला हुआ है, R2 चाहिए, P2 को R2 मिला हुआ है, उसे R3 चाहिए। बट ये R3 लेट्स से इस R3 को किसी और थर्ड प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा। सो अब हुआ क्या, एक ऐसा सिनेरियो बन गया है जहां पे P1 रिक्वेस्ट कर रहा है P2 को कि आई नीड रिसोर्स R2, कुड यू प्लीज गिव मी रिसोर्स R2 सो दैट मैं अपना टास्क पूरा कंप्लीट करके रिसोर्स को रिलीज कर दूं। प्रोसेस P2 सेम टाइम पे बोला नहीं 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 नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू रिसोर्स R2, I will only be able to give you resource R2 when I complete my task, and in order to complete my task I require resource R3 which is being again held up by another process P3 P4 कोई प्रोसेस होगा वो हेल्ड अप करके रखा हुआ है। सो ऐसा सिनेरियो जहां पे प्रोसेसेस लड़ाई कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज कोई और प्रोसेस ऑक्यूपाई करके उस पर वर्कआउट कर रहा है। सो वैसे सिचुएशन में एक डेडलॉक जैसा सिनेरियो बन जाता है, ना प्रोसेस P1 अपना रिसोर्स रिलीज कर रहा है P2 के लिए, ना प्रोसेस P2 अपना रिसोर्स रिलीज कर रहा है P1 के लिए, और ना ही उसको रिसोर्स मिल रहा है R3 फ्रॉम P3। सो परफेक्ट एग्जांपल होगा डेडलॉक का कि तुम अपना काम पूरा तभी कर पाओगे जब हम तुमको रिसोर्सेज देंगे, बट हम तुमको रिसोर्स उसी वक्त दे पाएंगे जब मुझे रिसोर्सेज जो मुझे अपने काम के लिए चाहिए वो पूरा मिल पाएगा। सो ना पहले वाला रिलीज कर रहा अपना रिसोर्स, ना दूसरा वाला एग्री हो रहा है, ना तीसरे वाले को पता है। Is it clear? Any doubt till now? No, sir. No, sir. No. So process state हो गया, process number, every process is provided with a process number. Let's say P1 P2 P3 ऐसे करके randomly कुछ number, integer numbers हम लोग provide कर देते हैं just to keep a count. Program counter, okay, one important aspect is the program counter. Program counter basically it indicates the address of next instruction to be executed for this process. इस प्रोसेस के द्वारा नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होंगे या नेक्स्ट सेट ऑफ रिसोर्सेज जो होंगे उसका एड्रेस या इंफॉर्मेशन रखने के लिए वी कीप होल्ड ऑफ प्रोग्राम काउंटर। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अभी लेट्स से इंस्ट्रक्शन I1 I2 I3 एग्जीक्यूट हो रहे थे,
I4 इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ओके, इंस्ट्रक्शन I4 मिलेगा, तो वैसे सिचुएशन में वो रिक्वेस्ट कर रहा है क्या चीज का, कि प्रोग्राम काउंटर इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखिए अबाउट I4 इंस्ट्रक्शन I4। तो प्रोग्राम काउंटर का एक ही काम है, टू कीप द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस। तो यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजीज चल रहे पैरेलली, डोंट गेट कंफ्यूज, देयर इज अ प्रोसेस, प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज, and these resources are being handled or being handed over through certain instructions. So process, resources and instructions, ये तीन terminologies parallelly हमारे चल रहे हैं। Next thing is registers or also known as CPU registers. Registers का purpose होता है डेटा होल्ड करना या इंफॉर्मेशन को होल्ड करना स्पेसिफिक टू दैट प्रोसेस। इस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन होने में क्या डेटा का जरूरत पड़ा, किस टाइप के डेटा का जरूरत पड़ा, वो सारा इंफॉर्मेशन रजिस्टर में कंटेन किया जाता है। दीज रजिस्टर्स डज वेरी फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपली डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आपका आर्किटेक्चर जैसा होगा, मतलब मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर या जो भी है वो सारा चीज फिजिकल आर्किटेक्चर जैसा होगा, उसके बेसिस पे इसका यूज जो है वैरी करेगा। नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी लिमिट्स, है ना, मेमोरी लिमिट्स या ऑल्सो नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ये क्या इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है मेमोरी लिमिट्स में, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में या एग्जीक्यूट करने में हमारे पास जो रजिस्टर्स लग रहे हैं, जो मेमोरी लग रहा है, उनका एड्रेसेस क्या है, हाउ आर दीज थिंग्स रिलेटेड टू ईच अदर, और इनमें डेटा कहाँ से फेच होकर के लोड किया जा रहा है। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होना बहुत जरूरी है। Then list of open files may also hold the status of the information related to input output functionalities। ठीक है, वी हैव इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से आपको कौन सा कब जरूरत है उसकी पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन रखता होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ प्रोसेस इज डिकम्पोज इनटू सो मेनी सेवरल स्मॉलर सेगमेंट्स, और हर एक चीज का इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस के अंदर का रखता है। ये बात हो गई एक प्रोसेस के लिए। वी नो इन टूडेज जनरेशन आवर सिस्टम्स आर मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं। So yes, I can process multiple things at the same time, provided that each such process are not fighting for same set of resources. ओके, अगर दोनों ही की दोनों प्रोसेस सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज के लिए अगर फाइट कर रहे हैं, तो वहां पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा, एक डेडलॉक जैसा सिचुएशन बन सकता है, एंड वी आर ऑलवेज रिक्वेस्टेड टू अवॉइड डेडलॉक्स। डेडलॉक हो गया मतलब क्या, वो सिस्टम हैंग कर जा रहा है, ठीक है ना, उसको जो रिसोर्स चाहिए था अपना काम या कंटिन्यू करने के लिए या एंड करने के लिए, वो उससे मिल ही नहीं पा रहा है, बिकॉज ये अपना काम जब कंप्लीट करके रिसोर्सेज रिलीज करता है तो कोई और दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करता है, बट वो खुद आधा रिसोर्स ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, उसको पता नहीं कि हमको काम क्या करना है। ओके, सो इज दिस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। नाउ few more things are there related to process, that is IPC, inter process communication. There are two types of processes basically, in terms of how do they operate or how do they communicate with each other. ध्यान से सुनिएगा, एक definition kind of thing हम पढ़ रहे हैं। If a process uh, is dependent on another set or another process,
or is being affected by another processes or has the ability to affect other processes, then that type of process is known as cooperating process. Okay, cooperating process. On the other hand, there are several processes which do not require the use of other processes to get complete its task. They run individually, they run independently, they do not require the help, or they don't affect, and also they are not affected by other processes. So these kind of processes are known as uh, independent processes. So there are independent processes and there are shared processes or cooperating processes. Cooperating processes, either they may get affected themselves or they have the power or ability to affect other processes. Okay. So basically we are dealing with those kind of, when we are dealing with those kind of processes which are correlated और जिनके बीच में हम लोग कुछ डेटा एक्सचेंज करते हैं, those kind of processes require the use of inter-process communication. Okay, for independent processes we do not require IPC, inter-process communication. नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, बिटवीन द प्रोसेसेस जो कम्युनिकेशन होता होगा उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं. So inside the IPC model you're supposed to learn, कहाँ चला ये cursor? Yeah, inside the IPC model you're supposed to learn two things. First one is shared memory model. Second one is मैसेज पासिंग मॉडल. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 पेज का नोट्स डेवलप किया जा सकता है, या इससे एक 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है. डिफाइन आईपीसी एंड इट्स मॉडल्स. सो दो तरीके से आप मेमोरी डिफरेंट कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आइदर थ्रू शेयर्ड मेमोरी मॉडल और आइदर थ्रू मैसेज पासिंग मॉडल. आई थिंक आज के लिए थ्योरी बहुत हो गया है, हम यहीं पे आईपीसी को रोक दे रहे हैं. आईपीसी हम नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करेंगे. आज कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. टिल देन एनी डाउट प्लीज आस्क मी. नो सर, डाउट नहीं है, बट ये जो आपने बताया ना प्रोसेस का जो कंपोनेंट है, तो ये आईपीसी एक कंपोनेंट ही है. पहला तो पीसीबी था, एंड ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये उसी कंपोनेंट है प्रोसेस का. दिस इज नॉट अ कंपोनेंट बट रादर जो लेट्स से दो प्रोसेस है P1 और P2, ये अगर आपस में कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या कुछ रिसोर्सेज को शेयर करते होंगे, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे कैसे? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. सो दैट इज अ मैकेनिज्म. ओके सर. ओके, सो द टू कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आपस में कोऑपरेट या आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसके लिए जो मैकेनिज्म है दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. और उस मैकेनिज्म के अंदर दो टेक्निक हमारे पास आता है, शेयर्ड मेमोरी मॉडल एंड मैसेज पासिंग मॉडल. अगेन शेयर्ड मेमोरी मैसेज पासिंग के अंदर भी और डिविजन्स हैं. ओके, और डिविजन्स आते हैं, तो इसीलिए हम उसको बहुत एलैबोरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा आज का क्लास कंज्यूम कर जाएगा और पूरा थ्योरी जैसा क्लास होने लगेगा, इट माइट गेट बिट बोरिंग फॉर यू गाइस. तो थोड़ा सा लास्ट का 10-15 मिनट्स जो बचा है उसमें हम लोग एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि एक न्यूमेरिकल देख पाएं. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल स्टार्ट. काइंडली टेक डाउन द स्क्रीनशॉट इन द मीन टाइम अगर कुछ जरूरत है तो, अदरवाइज मैम शायद रिकॉर्डिंग तो शेयर कर ही दे रही. फाइन, आई नीड सम स्पेस ओवर हियर.
Okay, so when we are dealing with processes, processes need to be scheduled. ये बात मैंने आज कहीं बीच में भी शुरुआत में कहा था और अभी फिर से कह रहे हैं कि each such processes needs to be scheduled. अगर आप शेड्यूल सही से कर देते हो प्रोसेसेस को तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क बहुत हद तक क्लियर हो जाता है कि कब किसको कौन सा रिसोर्सेज चाहिए है, कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, प्रोवाइड देम द रिसोर्सेज और वो अपने एग्जीक्यूशन में रन करके और प्रोग्राम प्रोसेस टर्मिनेट कर जा सकता है। So it is very simple for the operating system कि जब जिसको जो रिसोर्सेज चाहिए आप उसको एलोकेट करके टाइम रेडी कर दो, वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होकर के टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, सीम्स फेयर। ठीक है, बट शेड्यूल किया कैसे जाए, कुछ रूल्स तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बड़ा प्रोसेस है इसको पहले लगा दो, ये छोटा प्रोसेस है इसे पहले चला दो, ये पहले आ गया इसे पहले चला दो, इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है ऐसे चला दो। तो कोई एक स्पेसिफिक रूल होना चाहिए जिसके बेसिस पे ये शेड्यूलिंग पूरा चलेगा। ओके, सो ईच एंड एवरी प्रोसेस needs to be scheduled. Okay, so we have different types of schedulers as mentioned earlier. I'm not going to discuss about the schedulers, but rather the scheduling criteria or algorithms. So we do have scheduling algorithms. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ओके, एंड यहाँ पे हमारा जो है वो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वाला जो टर्म्स था वो आकर के यहाँ पे डिस्कस होगा अब। What is happening? Okay. Fine. So for scheduling algorithms, the first one, which is a very basic one, is FCFS scheduling. Okay, that is first come first served scheduling, FCFS। नाम में ही उसका मीनिंग बसा हुआ है कि जो प्रोसेस पहले आएगा, जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले रिसोर्सेज मिल जाएंगे या उसको पहले शेड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है, आइडिया बहुत सिंपल है। सो आउट ऑफ n नंबर ऑफ प्रोसेसेस P1 P2 P3 Pn, whichever process arrives first, comes first, will be served first। उसको पहले रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा और बाहर निकल के चला जाएगा। The idea seems pretty much easier, सिंपल सा टास्क है। ओके, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे। Now, as the name suggests, FCFS scheduling can be okay. So previously, I was required to mention this point. Scheduling algorithms हमारे दो तरह के हो सकते हैं, preemptive and non-preemptive, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। Okay, so if a process is not affected by another process और वो अपना टास्क पूरा कंप्लीट करके ही रिसोर्सेज रिलीज करता है, then that type of scheduling is known as non-preemptive scheduling। ये बहुत रिजिड टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। once they get hold of resources, they are not allowed or they do not release the resources, चाहे जो भी हो जाए, चाहे उनसे हायर वेटेज वाला, हायर प्रायोरिटी वाला, हायर इंपॉर्टेंस वाला प्रोसेसेस क्यों ना आ जाए, कितना भी रिक्वेस्ट क्यों ना कर ले, दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज द रिसोर्सेज। वो रिसोर्स उसी वक्त रिलीज करेंगे जब उनका टास्क कंप्लीट हो जाए। so they are very rigid। दूसरा क्या होता है, प्रीम्प्टिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। प्रीम्प्टिव में क्या है, ये थोड़ा सा नरम दिल टाइप है कि काम अपना स्टार्ट किया था रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करके, बट इससे पहले कि वो अपना काम पूरा कंप्लीट कर पाता, उसको दूसरा कोई प्रोसेस आकर के इंटरप्ट कर दिया कि आई नीड योर रिसोर्सेज फॉर अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम, एंड सिंस माय प्रायोरिटी इज हायर, माय वेटेज इज हायर, या कोई रीजन से बोल रहा कि मेरे पहले क्यों मिलना चाहिए, एंड इफ दैट रीजन इज जस्टिफाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एल्गोरिथम क्राइटेरिया, इट गेट्स द रिसोर्सेज। और प्रीवियसली जो एग्जीक्यूट हो रहा था प्रोसेस, उसको मिड वे में रुकना पड़ता है,
सो हम लोग ने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में देखा कि वो इंटरप्ट मिलने से कहाँ जाएगा, वापस से रेडी क्यू में चला जाएगा, और वहां से फिर से उसको जब रिसोर्सेज मिल जाएंगे वापस से, वो वापस रनिंग मोड में आ जाएगा. Okay, so out of the two, FCFS scheduling is always of non-preemptive type. FCFS scheduling जो हमेशा non-preemptive type. एक प्रोसेस आया, रिसोर्स मिला उसे, वो अपना टास्क कंप्लीट करके ही बाहर निकलेगा. देन ओनली नेक्स्ट प्रोसेस P2 और P3 जो भी ये सीक्वेंस में है, जो पहले आया होगा, उसको पहले एग्जीक्यूशन का मौका मिल जाएगा. ये रूल आपको समझ के याद रखना पड़ेगा अभी. ओके, now we'll take an example. Okay, let's say एक टेबल प्रिपेयर करते हैं. टेबल इज प्रोसेस इज देयर, इसके नीचे हम लिख लेते हैं पहले प्रोसेस P1 P2 P3. ओके, छोटा ही प्रोसेस लेते हैं ताकि हम लोग इसे कंप्लीट समझ पाए. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अराइवल टाइम. ओके, ये प्रोसेसेस कब अराइव करने वाले हैं, ये कब अराइव करे, कितने बजे, कितने टाइम ड्यूरेशन में, ये अराइवल टाइम दिया होना चाहिए. सो फॉर प्रोसेस 1 लेट्स से इट इज अराइविंग एट टाइम इंटरवल 0. प्रोसेस P2 इज अराइविंग एट टाइम इंटरवल 3. ओके, 2 ले लेते हैं. एंड प्रोसेस P3 इज अराइविंग एट टाइम इंटरवल 1. ओके, ये हो गया. Next thing that we're going to get in the numerical is the burst time. What is the burst time? कि ये प्रोसेस जो आया, अराइव किया, ये कितने देर तक, कितने टाइम ड्यूरेशन तक, कितने इंटरवल तक ये एग्जीक्यूट करेगा. ओके, कितनी देर तक वो रिसोर्सेज को होल्ड करके रखेगा, ये बता रहा है बर्स्ट टाइम. तो लेट्स से बर्स्ट टाइम आई एम गिविंग इज 10, 3 यूनिट एंड लेट्स से 2 यूनिट, ऐसे चलते. Okay, so currently we are having 3 components in our numerical. That processes are given P1 P2 P3. There are 3 processes, each is having an arrival time as 0 2 and 1. मतलब कि पहले प्रोसेस P1 अराइव करेगा, देन P3 एंड देन P2, है ना. टाइम इंटरवल 0 पे P1 अराइव कर रहा है, टाइम इंटरवल 1 पे P3, और देन टाइम इंटरवल 2 पे प्रोसेस P2 अराइव कर रहे हैं. Also, if you see the burst time, we can make it out that प्रोसेस P1 जब वो अराइव करता है तो वो 10 यूनिट टाइम, 10 टाइम इंटरवल तक एग्जीक्यूट करेगा, तब जाकर के वो रिसोर्सेज रिलीज करेगा. उससे पहले वो नहीं कर पाएगा. तो वंस इट रिलीजेस द रिसोर्सेज, नेक्स्ट प्रोसेस P3 will arrive and process P3 will receive the resources, और वो 2 यूनिट टाइम तक काम करेगा बिकॉज उसका बर्स्ट टाइम 2 यूनिट. एंड फाइनली प्रोसेस P2 अब क्योंकि लास्ट पे सिर्फ प्रोसेस P2 ही बचा है, तो उसको पूरे के पूरे रिसोर्सेज मिल जाएंगे. वो 3 टाइम इंटरवल या 3 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट करके सिस्टम को रिलीज कर देगा सारा रिसोर्सेज. ओके, तो मिनिमम ये 3 चीज आपको दिया होगा एक न्यूमेरिकल में. यू विल बी सपोज टू कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम and the turnaround time, the turnaround time and the average waiting time, कि हर एक प्रोसेस को इन टोटलिटी कितनी देर वेट करना पड़ा. ओके, तो शायद कि हम लोग पूरा न्यूमेरिकल आज सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग कवर अप कर ले रहे हैं. हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल.
सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को करना है उसमें, दैट इज वी नीड टू प्रिपेयर अ गैंट चार्ट. ओके, तो इसी के साइड में हम लिख रहे हैं, और नेक्स्ट टास्क इज टू प्रिपरेशन ऑफ Gantt chart. Preparation. Okay. Preparation of Gantt chart. What is this Gantt chart? Okay, ये हम लोग आई थिंक सिस्टम या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में भी गैंट चार्ट का यूज होता है, अगेन डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोग गैंट चार्ट को सॉल्व रखते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. सी हाउ टू प्रिपेयर दिस गैंट चार्ट. Okay, so we'll the left hand side we have the table जो क्वेश्चन में दिया गया, उसको देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग गैंट चार्ट प्रिपेयर करेंगे. ओके, सो जस्ट गिव मी few more minutes and we'll be done with the preparation of Gantt chart. So we are performing FCFS scheduling, मतलब कि we have to look for the what arrival time. Okay, FCFS scheduling में हम लोग arrival time पे फोकस करेंगे. We are least concerned with burst time right now. Our primary focus is the arrival time because first come first serve. तो पहले कौन arrive किया, isn't it? Whichever process arrived first will get the first control into the Gantt chart. Okay, so as per our information, we see there are three processes P1, P2, P3. Out of them, process P1 has arrived first. Process P1 has arrived first. ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे गैंट चार्ट में, सॉरी, I'll write P1. ओके, और यहाँ पे लिख देंगे 0 टाइम इंटरवल से स्टार्ट हुआ है प्रोसेस P1. ओके, नाउ जैसा कि मैंने बोला था कि FCFS जो होता है हमारा पूरा वो नॉन प्रिमिटिव होता है, तो अपना पूरा टास्क कंप्लीट करके ही प्रोसेस P1 रिसोर्स को रिलीज करेगा. अब ये पूरा टास्क कंप्लीट कब कर रहा है, इसके लिए हम लोग देखेंगे बर्स्ट टाइम. ओके, तो शेड्यूलिंग के लिए हम लोग देखिए अराइवल टाइम, अब वो कितनी देर तक प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड पे रखेगा, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं बर्स्ट टाइम. सो इफ यू कैन सी प्रोसेस P1 इज यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर 10 यूनिट टाइम. तो यहाँ से ये यहाँ तक हो सकता है, यहाँ कहीं पे चलता होगा. 10. ओके, 0 से स्टार्ट किया, 10 यूनिट टाइम तक चला, तो 10 यूनिट तक हम लोगों ने लिख लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके चला. फाइन, 10 यूनिट टाइम के बाद वो रिलीज कर दिया रिसोर्सेज. मतलब क्या हो गया, P1 जो था 0 इंटरवल से शुरू हुआ और 10 यूनिट टाइम तक रन करके रुक गया. नाउ इफ यू सी, आप में से कोई बता सकता है कौन सा प्रोसेस पहले आना चाहिए गैंट चार्ट में, अब P2 और P3, विच वन? P3 सर. P3. वाई P3? सर ये उसका अराइवल टाइम 1 है. उसका अराइवल टाइम 1 है. बट इफ यू सी both the processes P2 and P3 have arrived. यस कैसे ये पता सर. चला यस सर. कि P1 जब काम कर रहा था तो टाइम इंटरवल 1 पे जब अपना पहुंचा तो P3 अराइव हो चुका था, लेकिन उसको रिसोर्सेज नहीं मिले. वाई? बिकॉज P1 अपना काम कंप्लीट नहीं. फिर जब आगे बढ़ा तो प्रोसेस P2 भी अराइव कर गया सेकेंड टाइम इंटरवल पे, लेकिन उसको भी रिसोर्सेज नहीं मिले बिकॉज P1 का काम कंप्लीट नहीं हुआ. तो टाइम इंटरवल 2 तक दोनों के दोनों प्रोसेसेस P2 एंड P3 अराइव कर चुके थे, लेकिन रिसोर्सेज कब मिलेगा, 10 यूनिट टाइम के बाद जब प्रोसेस P1 रिलीज कर दिया रिसोर्सेज, तब उसको अब P2 और P3 में से किसी एक को मिलना है. तो एग्जैक्टली यस, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली, that process P3 will get the resource first. Why? Because arrival time ही वैसा दिया हुआ है.
हम लोग Yes. FCFS शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो उसमें अराइवल टाइम जिसका पहले होगा उसको मिल जाएगा. Okay, so now what will happen? Process P2, sorry P3. P3 will get the resources और ये यहाँ पे P3 जो है 2 यूनिट टाइम के लिए काम कर रहा है, तो 10 से 12 तक चलेगा. फाइनली हमारे पास क्या बच गया? ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा साइज का बन गया है. P2 3 यूनिट टाइम, मतलब 12 से शुरू किया तो get the last time as 15. कोई डाउट गैंट चार्ट में? नो सर. No, sir. इजी है? यस सर. Yes, sir. ठीक है, ओके. तो यहीं पे हम लोग रुक रहे हैं बिकॉज यहाँ तक काफी चीज हम 3 टॉपिक आज पढ़ा दिए हैं, आपके लिए काफी कुछ हो जाएगा कवर अप करने के लिए. सो टेक सम टाइम टू एब्जॉर्ब दीज थिंग्स, रेफर द बुक्स और द नोट्स और मटेरियल व्हाटएवर यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट द FCFS शेड्यूलिंग. और इसमें एक प्रॉब्लम एक आता है, जैसे कि हम लोगों ने शेड्यूलिंग में तो FCFS बोल दिया कि जो सबसे पहले अराइव होगा वो उसको पहले रिसोर्सेज मिल जाएगा. बट इफ यू सी दिस एग्जाम्पल, इसमें ना एवरेज वेटिंग टाइम हमारा बहुत हाई आने वाला है. ओके, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखा उसमें एवरेज वेटिंग टाइम जो आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम क्या, हर एक प्रोसेस को कितना देर वेट करना पड़ा अपने रिसोर्स फाइंड आउट करने के लिए, रिसोर्स पाने के लिए. फॉर एग्जांपल P1 was supposed to be arriving at टाइम इंटरवल 0, उसको टाइम इंटरवल 0 पे रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे. Now look at into the Gantt chart, क्या प्रोसेस P1 को रिसोर्स मिला टाइम इंटरवल 0 पे? यस, है ना. वो प्रोसेस P1 जो 0 टाइम इंटरवल से स्टार्ट हुआ है, तो उसको वेट नहीं करना पड़ा. But if you see the process P2 or P3, P2 was supposed to get its resources at time interval 2. P2 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसको मिल कितने बजे रहा है? 12 यूनिट टाइम पे, तो उसको 10 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा. Similarly, if you see about process P3, P3 was supposed to get the resources at time interval 1, but क्योंकि प्रोसेस को रिसोर्सेज को P1 ने होल्ड पे रखा था, इंगेज कर रखा था, तो उसको वेट करना पड़ा और उसको एक्चुअली में मिला कब? 10 यूनिट टाइम पे. सो 10 minus 1 is the 9 unit time that process P3 had to wait. So average waiting time अगर हम लोग देखते हैं तो 10 plus 9 plus 0 divided by 3, because there are 3 processes. That is how you are evaluating. ये पूरा का पूरा एवरेज वेटिंग टाइम इतना हाई क्यों आया? बिकॉज हमने सबसे पहले सबसे बड़े प्रोसेस को ही रिसोर्सेज दे दिया था. इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर देते, लेट्स से कि प्रोसेस P1 लेट्स से बर्स्ट टाइम उसका होता है 2 यूनिट्स, प्रोसेस P2 का 3 यूनिट्स होता और प्रोसेस P3 का 10 यूनिट्स होता. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ आई रिवर्स द सीक्वेंसेस of burst time, process P1 has the burst time of 2 unit, process P2 has the reverse time burst time of 3 units, and process P3 has the burst time of 10 units. तब उसका गैंट चार्ट बना करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि एवरेज वेटिंग टाइम कंसिडरेबली कम हो पाया है. सो दैट इज द टास्क आई एम लीविंग यू ऑल गाइज बिहाइंड, कि आप इसको वर्कआउट करके देखिए. नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी से उठाएंगे, शुरू करेंगे बात कि कितने लोगों ने गैंट चार्ट में देखा एवरेज वेटिंग टाइम चेंज हो पाया या नहीं. इज इट फाइन? यस सर. ओके, सो एनी डाउट प्लीज आस्क. नो सर. ओके, सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. बाय बाय. Thank you, sir.